تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ اور وزیر صحت ای راجندر نے ضلع ورنگل کے شدید بارش سے متاثرہ علاقوں کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سروے کیا۔ ورنگل میں کے ٹی آر کا وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ، وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستیہ راٹھور اور مقامی عوامی نمائندوں نے استقبال کیا۔ خصوصی بس کے ذریعے ریاستی وزراء نے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، عوام سے ملاقات کی اور ورنگل کے ساویہ نگر کالونی میں ڈرینیج سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی متاثرین کو غذا، دوا اور رہائش فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ تارک راما راؤ نے نعیم ساگر اسٹرام واٹر ڈرین کا بھی معائنہ کیا جو ورنگل کے بڑے نالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ساویہ نگر کا بھی دورہ کیا جو بارش کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ وزراء نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بارش کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پہلے ہی سرکاری مشنری کو چوکس کر دیا ہے۔ بارش سے پیدا صورتحال کے بعد راحت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع منچریال حضور نگر منڈل میں گزشتہ ایک ہفتے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کی وجہ سے سری پیدا ایلمپلی پروجیکٹ لبریز ہو گیا ہے۔ حکام نے ڈیم کے 8 دروازے کھول کر فاضل پانی کو چھوڑا ہے۔ آبی پروجیکٹ میں پانی تیزی سے داخل ہو رہا ہے۔ حکام نے چوکسی اختیار کی ہے اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس ڈیم میں 20.17 ٹی ایم سی پانی کی گنجائش ہے اور ڈیم میں 19.45 ٹی ایم سی پانی موجود ہے اور پانی ڈیم میں داخل ہو رہا ہے۔ اور وہیں تلنگانہ کے بھدادری کوتاگوڑم کے بھدراچلم میں دریائے گوداوری کی سطح میں کمی ہو رہی ہے جس سے عوام اور عہدیداروں کو راحت نصیب ہوئی۔ اس دریا میں آبی سطح جو بھدراچلم پشکر گھاٹ میں پیر کی شب 61.6 فٹ تھی جو کم ہو کر 55.30 فٹ درج کی گئی ہے۔ 14,07,725 کیوزک پانی کو چھوڑا گیا۔ گوداوری میں اس سال بھاری مقدار میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ حکام نے احتیاطی طور پر نشیبی علاقوں سے عوام کو ہٹایا اور ریلیف کیمپ میں حکام کی لاپرواہی سامنے آئی ہے۔ عوام نے غذا کی قلت کی شکایت کی۔ حکام نے وقت پر کھانے کے ساتھ ساتھ تمام سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 4 دنوں کے دوران ہوئی بارش کے بعد بیشتر تالاب اور کٹے لبریز ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چیک ڈیمز میں بھی بڑے پیمانے پر پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ بعض تالابوں میں پانی کی بھاری ذخیرے کے بعد ان کو دیکھنے کے لیے مقامی عوام کا ہجوم دیکھا گیا۔ عوام نے مسرت کا اظہار کیا اور تالابوں کے قریب سیلفی، ویڈیوز و تصاویر بھی لی گئیں۔ اضلاع وقار آباد، سوریہ پیٹ، متحدہ ورنگل، سدی پیٹ، متحدہ نظام آباد، جگتیال، نرمل، محبوب نگر کے آبی ذخیرے لبریز ہو گئے ہیں۔ بالائی علاقوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے پانی کا شدید بہاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ آبی ذخائر سے فاضل پانی کو چھوڑا گیا۔ اس کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آبی ذخائر پہنچ کر لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔ دریائے کرشنا میں کشتی ڈوبنے سے 4 افراد لاپتہ ہو گئے جبکہ 9 افراد کو بچا لیا گیا۔ یہ حادثہ تلنگانہ کے ضلع نارائن پیٹ کے مکتھل منڈل میں پیر کی شام پیش آیا۔ این ڈی آر ایف کی ٹیم لاپتہ افراد کی تلاش کر رہی ہے۔ مقامی تحصیلدار نے بتایا کہ پڑوسی ریاست کرناٹک کے ضلع رائچور سے تعلق رکھنے والے افراد ہفتہ واری بازار سے ضروری سامان خرید کر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ مکتھل پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ لاپتہ افراد کی شناخت 30 سالہ نرسما، 50 سالہ چنما، 25 سالہ سومالتا اور ان کی 9 سالہ بیٹی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد اور حیدرآباد میٹرو ڈیولپمنٹ اتھارٹی حدود میں موجود اوقافی جائیداد کے تحفظ پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں تلنگانہ وقف بورڈ کی صدر محمد سلیم، وقف بورڈ کے حکام، جی ایچ ایم سی میئر بی رام موہن، جی ایچ ایم سی کے عہدیدار، ایچ ایم ڈی اے کے افسر اور دیگر نے شرکت کی۔ بی رام موہن نے بتایا کہ تمام افراد نے اس معاملے پر تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس معاملے پر وقف اتھارٹیز کو تعاون کرنے کی اپیل کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے وقف املاک کے تحفظ کے لیے اوقافی جائیدادوں کی تفصیلات کو آن لائن کرنے اور جیو ٹیگنگ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
تلنگانہ کے وزیر زراعت سنگی ریڈی نرنجن ریڈی دہلی کے دورے پر ہیں. انہوں نے دہلی میں مرکزی وزیر کیمیکل اینڈ فرٹیلائزر سے ملاقات کی. ریاستی وزیر زراعت نے بتایا کہ انہوں نے مرکزی وزیر سے تلنگانہ کے لیے اعلان کیے گئے یوریا کو سپلائی کرنے کی اپیل کی. انہوں نے بتایا کہ مرکزی وزیر تلنگانہ کے کسانوں کو ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. ఈ ఆగస్టు మాసంలోనే పీక్ ఉంటుంది మాకు. కాబట్టి ఈ ఆగస్టు మాసం కోసం మీరు ఏదైతే ప్లాన్లో మాకు అలొకేషన్ ఇచ్చి ఉన్నారో 2,56,000 మెట్రిక్ టన్నులు ఆగస్టు మాసంలో తెలంగాణకు ఇవ్వడానికి కేంద్రం గతంలో అలొకేషన్ ఇచ్చి ఉన్నదో అందులో ఇప్పటికి మాకు 88,000 మాత్రమే చేరింది. మిగతాది మీరు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారమే, మిగతాది మీరు మాకు ఆ సప్లై ప్రకారం ఇస్తే మాకు ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన ప్లాన్ అమలు చేయమని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మంత్రి గారు చాలా సానుకూలంగా స్పందించినారు. తెలంగాణ రైతన్నకు కూడా మేము వెనుదనుగా ఉంటాము, మేము ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా తప్పకుండా సప్లైస్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కేంద్ర మంత్రి గారికి మా ప్రభుత్వం తరఫున, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలిపి రావడం జరిగింది. गणेश उत्सव कमेटी ने आवाम से कोविड-19 के गाइडलाइंस के मुताबिक त्यौहार मनाने की अपील की. गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव ने कहा कि समिति हर पुलिस स्टेशन के अमले से मिलकर गणेश पंडाल लगाने पर तबादला ख्याल करेगी और इस त्यौहार को पुरअमन बनाने की कोशिश की जाएगी. परंतु सभी लोग उत्साहित है और ये उत्सव एक ही है, जात पात पंथ और राजनीतिक से परे होकर सब लोग इकट्ठा होकर सभी लोग मिलकर उत्सव बनाते. मेन रोड पे अपन भी डिस्करेज कर रहे हैं, अपने बस्तियों में लगा सकते हैं, मेन रोड पे नहीं. से हम रिक्वेस्ट करें सो है जो भी लोकल पुलिस स्टेशन से सेक्टर वाइज मीटिंग लगा के कोई डिस्प्यूट अरेज नहीं हुए ऐसा काउंसलिंग करे, ऐसा मोटिवेट करे, ऐसा अपने कारण ये कोविड वायरस जो है स्प्रेड नहीं होना. इस बार ये अपने लिए इम्तिहान भी है. उत्सव अच्छी तरीके से मनाए, एक आदर्श भूमिका निभाने के लिए ये सहयोग रहना बोल के बताया. हमारे तरफ से किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, परंतु कोविड गाइडलाइंस को दृष्टि में रखते हुए अपन अपना बिहेवियर रहना. सिर्फ हमको कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कि उसका उल्लंघन ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमको मनाना है. गणेश कभी भी हमने मूर्ति के साइज के बारे में आप कितना बड़ा बिठाएं, छोटा बिठाएं, कुछ भी बिठाएं, लेकिन गणेश निमज्जन को विसर्जन के लिए हम कैसा लेकर जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में उसका ध्यान रखते हुए बिठाएं. हमें हमारे साथ साथ दूसरों की जान भी बचानी है. और अब बात तेलंगाना में कोरोना की. तेलंगाना में कोविड-19 मुतासरीन की तादाद 93,237 हो गई है और रियासत में आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 711 हो गई है. तेलंगाना के महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1,682 ताज़ा मामले सामने आए और 8 अफराद की मौत हो गई है. अब तक तेलंगाना में 72,202 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं. 21,024 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं. GHMC में कोरोना के ताज़ा मामले 235, रंगारेड्डी में 166 मामले दर्ज किए गए हैं. गुज़श्ता 24 घंटों में 19,579 नमूनों की जांच की गई है. तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने प्लाज्मा के अतिया के सिलसिले में बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया. तेलुगु फिल्मों के सरकर्दा हिदायतकार राजामौली, म्यूजिक डायरेक्टर किरवानी, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सुजनार और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. राजामौली ने कहा कि कोरोना के ताल्लुक से किसी को भी लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ही एहतियात की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि प्लाज्मा के अतिया के सिलसिले में लोगों में फैले खदशात और अंदेशों को दूर करने की ज़रूरत है. उन्होंने कोरोना से रोबा सेहत होने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो प्लाज्मा का अतिया दें. इस मौके पर प्लाज्मा के अतिया पर बनाया गया गीत भी जारी किया गया. तेलंगाना में नौजवानों की एक टीम कोरोना से मुतासिर होकर मरे हुए अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर रही है. ये नौजवान एक गैर सरकारी तंजीम के बैनर तले हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं. तंजीम के सदर
सैयद जलालुद्दीन जफर ने बताया कि इनकी टीम ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कोरोना से हलाक 147 अफराद की उनके मजहबी अकीदे के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी। उन्होंने आवाम से कोरोना वायरस से खौफजदा न होने की अपील की और साथ ही कोरोना को हराने के लिए आगे आने पर जोर दिया। एक साथी के वालिद का इंतकाल हो गया था मेरे फ्रेंड के, तो वो उसके डैड को छोड़ के वो चले गया कि कोरोना का है। हम जब देखे तो हम आपको बहुत तकलीफ़ हुई कि इंसानियत क्या ख़त्म हो गई उनके। फिर हमारी टीम के सामने हम बात रखे और यूथ वेलफेयर की पूरे मिल के हम फिर उनका लास्ट राइट्स करें। उसके बाद फिर हम 2-3 दिन के बाद ईटला राजेंद्र रेड्डी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए, उनके सामने बात रखे तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किए और उन्होंने पूछे कि आप अनक्लेम बॉडीज़ भी करते क्या बोलते। तो अब हमको बताया कि हम अनक्लेम बॉडी नहीं करेंगे हम जब तक आप NOC ना दें और GO पास ना करें। जो क्लेम बॉडीज़ है चाहे कोई भी मज़हब के रंदो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब का करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 147 उतने डेड बॉडीज़ को हम उठाए, जिसमें 14 हिंदूज़ है, 1 क्रिश्चियन है, 1 सरदार जी है, रिमेनिंग मुस्लिम। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हैदराबाद में हमारे यूथ के 50 मेंबर्स है, तांडूर में 30 मेंबर्स है और निज़ामाबाद, आदिलाबाद और महबूबनगर में 5-5 मेंबर्स है। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग को जुड़ा सकें। और कोरोना से डरने का नहीं है, इससे हम मुकाबला कर सकते हैं। एहतियात करना चाहिए, प्रिकॉशंस यूज़ करना चाहिए। अगर हम डर के ऐसे ही छोड़ देंगे तो चारों तरफ लाशों के। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें स्कूलों को लेकर। जी हाँ, तेलंगाना में स्कूली तलबा को ऑनलाइन क्लासेस की फराहमी के लिए शेड्यूल जारी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने जारी किया रिकॉर्डिंग शेड्यूल। तेलुगु और इंग्लिश मीडियम के असातिज़ा के साथ क्लासेस की होगी वीडियो रिकॉर्डिंग। शेड्यूल में उर्दू मीडियम के क्लासेस के रिकॉर्डिंग का कोई तस्करा नहीं। स्टेट टीचर्स यूनियन ने तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत की उर्दू दोस्ती पर अब मजीद सवाल उठ रहे हैं। तो इंग्लिश और तेलुगु मीडियम ऑनलाइन क्लासेस की फराहमी के लिए शेड्यूल जारी हुआ है। तो तेलुगु और इंग्लिश मीडियम के असातिज़ा के साथ क्लासेस की रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग का शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें उर्दू मीडियम की क्लासेस के रिकॉर्डिंग का कोई तस्करा नहीं है। इसको लेकर स्टेट टीचर्स यूनियन ने तशवीश का इजहार किया है और तेलंगाना हुकूमत की उर्दू दोस्ती पर सवाल खड़ा किया है। आइए सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तेलंगाना स्टेट टीचर यूनियन हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन। इफ्तिखार साहब, चलिए, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत तो हुई है, अब तलबा ऑनलाइन पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन क्या बात है कि नई तालीमी पॉलिसी में जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर तेलंगाना में भी उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया ऑनलाइन। जी साहब, ये कैसा है कि 20 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं जी। के लिए अभी से क्या है, रिकॉर्डिंग के लिए असातिज़े का इंतखाब अमल में लाया गया जी। लेकिन ये हर दफा का रोना है। हमेशा से यहाँ पर उर्दू मीडियम क्लास तुलबा को और असातिज़ा को नजरअंदाज किया जाता है जी। कल की डेट में डायरेक्टर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से 342 प्रोसीडिंग जारी की गई, जिसके अंदर प्राइमरी के लिए तेलुगु मीडियम और सेकेंडरी के लिए इंग्लिश मीडियम के तहत क्या है ये रिकॉर्डिंग की जा रही है जी। लेकिन इसके अंदर उर्दू सब्जेक्ट का भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम की बात लेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु के लिए वहाँ पर क्या है रिकॉर्डिंग हो रही, लेकिन वहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, उर्दू सब्जेक्ट की भी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। दूसरे सब्जेक्ट तो फिजिकल साइंस है, EVS है, सोशल है और मैथ्स है, इसको उर्दू मीडियम में दिया जाना चाहिए जी। ये तेलंगाना जब बना उससे पहले जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में थे तो उस वक्त यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसेस भी उर्दू में हुआ करते थे जी। नहीं, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? सिर्फ शुरुआत है या आगे फिर उर्दू में भी किया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास है? ये तो मेरे नजर में ऑफिशियल क्या है, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू को खत्म करना चाह रहे हैं। ये इलों के जहन क्या है आश्कार हो रहे हैं। यहाँ पर कई बार क्या है याद दहानी की जाने के बावजूद भी ये लोग उर्दू के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, खुल के नाइंसाफी हो रही है। खासकर मैं कहूंगा कि SCRT के अंदर अगर हम देखेंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको वहाँ पर एक्सपर्ट्स मिलेंगे, लेकिन उर्दू का कोई एक्सपर्ट नहीं है वहाँ पर। तो नहीं इफ्तिखार साहब, क्या उर्दू के टीचर्स आगे क्यों नहीं आते? जब उर्दू के स्कूल हैं, उर्दू के टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल बंद है इस वक्त, तो उर्दू टीचर्स भी तो सामने आना चाहिए इस मामले को लेकर।
नहीं, उर्दू टीचर्स हमेशा से आने के लिए तैयार है, लेकिन बुलाया नहीं जाता। अगर तब आइंदा का लाहेमल क्या है? क्योंकि तेलुगु और इंग्लिश मीडियम की तो शुरुआत हो जाएगी, उर्दू के बच्चे कहाँ जाएं फिर? इसके लिए आपका लाहेमल क्या होगा आगे? हाँ, इंशाल्लाह हम इसके लिए बराबर एहतजाज करेंगे। हम लोग हमारे स्टेट लीडर्स के साथ भी टच में हैं, और दूसरे मतलब कायदीन है, उन कायदीन के साथ भी हम मुशावरत करके हम इसके लिए लाहेमल इख्तियार करते हुए इसके लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। अब हमारे पास तो क्या है, डेमोक्रेटिक अंदाज में हम एहतजाज ही कर सकते हैं, और हम बराबर उसके लिए एहतजाज करेंगे और दबाव बनाएंगे। दबाव बनाकर हम ये जो उर्दू मीडियम तुलबा है, उन तुलबा के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे, उनके साथ हम बराबर शरीक रहेंगे। नहीं, आप वज़ीर तालीम के जो है अपील कर सकते हैं, याददाश्त पेश कर, जब ये मामला आ गया है आपके सामने तो इस पर आपको फौरन जो है इस सिलसिले में एक्शन लेना पड़ेगा उर्दू तलबा के मुस्तकबिल के लिए। मैं वही बताया कि हमारे स्टेट कायदीन के साथ हम बात करके इसके ऊपर क्या है, हम एजुकेशन मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को हम इसके लिए बराबर नुमाइंदगी करेंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उर्दू को नज़रअंदाज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरी सरकारी ज़बान है उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर रंजन कुमार ने स्पेशल ब्रांच से वाबस्ता इंस्पेक्टर के चंद्र कुमार को मुअत्तल कर दिया है। कमिश्नर ने कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस का तर्ज-ए-अमल एक खातून के साथ गलत रहा है। क़ब्ल अज़ीं वो स्टेशन हाउस ऑफिसर फलकनुमा की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मालूम हुआ कि एक खातून ने सिटी पुलिस के आला अहदेदारों से रब्ता किया था और इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की थी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने बैन रियासती ड्रग्स की तैयारी और सप्लाई के मामले को बेनकाब करने और 100 करोड़ की मंशियात को जब्त करने का दावा किया है। हुक्काम ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक फैक्ट्री को मोहरबंद कर दिया है और जहां ममनू ड्रग्स तैयार किया जाता था। हुक्काम ने बताया कि ड्रग्स को हैदराबाद से प्राइवेट बसों में कार्गो के जरिए मुंबई सप्लाई किया जा रहा था और वहां से मुल्क और दीगर ममालिक को सप्लाई किया जाता। हुक्काम ने इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और मुलज़मीन के कब्जे से अमरीकी डॉलर, यूरो और दीगर करेंसी को भी जब्त किया है। DRI हुक्काम ने मुंबई और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया कि मंशियात का कारोबार हवाला के जरिए किया गया था। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।